Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Hare Ram Hare, Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jai Shri Hare, Jagannath Prabhu Sadhu Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से गदाधर से सदि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्ण सतीश हरे कृष्ण हरे कृष्ण सौरभ जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण कुंदन हरे कृष्ण धनंजय पीयूष अभिनव हरे कृष्ण हरे कृष्ण नन्ना हरे कृष्ण Read from Srimad Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय Narayanam Namaskrityam नारायणं नमस्कृत्यं Naram Chaiva Narottamam नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswatim Vyasam देवीं सरस्वतीं व्यासं Tato Jayamudire ततो जयामुदीरये Nashtaprayeshu Abhadreshu नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nityam Bhagavata Sevaya नित्यं भागवत सेवया Bhagavate Uttama Sloke भगवते उत्तमश्लोके Bhaktir Bhavati Naistike भक्तिर्भवति Namo Vishnu नमो Padaya Krishna Prishthaya कृष्णाय Srimati Bhakti श्रीमते Vedanta भक्तिवेदान्त Swami Niti Namine Namaste Saraswati नमस्ते Deve Gauravani सरस्वती Pracharine गौरवाणी प्रचारिणे Nirvishesha Sunyavadi Paschat शून्यवादी Deshatarine Vancha पश्चात्पदेशतारिणे Kalpataruvescha Kripa पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo कृष्णदेवो Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is chapter
2. Contents of the Gita summarized. Text number 40. Kundan, you can read. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. नेहाभिक्रमनाशो अस्ति नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् आयते महतो भयात्. Translation: in this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Purport: activity in Krishna consciousness, or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification, is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity find no impediment, nor can that a small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. But ऊपर कीजिएगा. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness wears permanent result, so that the next beginning is from the point of 2%, whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. Jamila performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100%. By the grace of the Lord, there is nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam 1.5.17. ते कत्वा स्वधर्मं चरणामभूजं हरेर् भजन् अपकवोऽथा पतेत तो यदि यत्र कववावर्धम् अभूतमुष्य किं को वार्थ अपतो अभजतां स्वधर्मतः. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls on an account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or, as the Christian says, what profit a man if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul? Material activities and their result end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana or in a rich
aristocratic family that will give one further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. So we'll stop here and discuss very beautiful verse today. So yesterday we saw that Krishna was telling that ये जो बताने जा रहे हैं कृष्णा, that is how to act, how to do karma based on Krishna consciousness. कर्म तो सब कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन karma or work in Krishna consciousness is very important, and that is bhakti. Bhakti doesn't mean that we sit and always meditate. That is not bhakti. Bhakti is working on behalf of Krishna, understanding the mission of Krishna, to work on that platform is called bhakti, and that is karma yoga, and that is the action in Krishna consciousness. तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो है, ये जो एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, वो कर्म करो, कोई भी फल की उपेक्षा मत करो, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस और उसकी चिंता मत करो, चाहे विजय हो या जय हो या फिर पराजय हो, उसकी भी परवाह नहीं करो। लेकिन इसको करने के लिए हम पहले भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि इसको करने के लिए हमको we have to lead our consciousness in Krishna consciousness. जब तक हम कृष्ण भावनामृत में भावित नहीं हैं, तब तक ये कर्म करना मुश्किल है, इसी टाइप का कर्म करना मुश्किल है। सब लोग करते हैं कर्म, कोई अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, कोई अपने स्वजनों का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहा है, लेकिन कृष्ण के लिए कौन कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कौन कर्म कर रहे हैं, वही भक्ति है। इसलिए सब सर्वोच्च स्थान पर रखा गया था ब्रजवासियों को कृष्ण के भक्तों में से। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी जो हैं वो अपने लिए कभी नहीं सोचते थे, वो हमेशा कृष्ण को कैसे आनंद प्राप्त होगा उसी के बारे में ही दिन रात सोचते थे। इसलिए उनको सर्वोच्च स्थान मिला है। जो कृष्ण के जितने भी डिवोटी हैं, ब्रजवासियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्ति हुआ है। लेकिन प्रभु यहाँ पे कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें थोड़ा सा एंडिवर करेगा, थोड़ा सा कोशिश भी करेगा, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें कोई लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और उसमें क्या होगा, इज ऑलवेज ही रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस डेंजरस प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग देखते हैं भौतिक जगत जो है फुल ऑफ डेंजर है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोग सोचते हैं अभी तो यंग है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक क्षण में कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको सोचते नहीं, कभी सोच भी नहीं पाते।
नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये संसार ऐसे डिजाइन किया गया है। कब क्या होगा कुछ पता नहीं, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रभुपाद इसलिए परपट में बता रहे हैं, इतना अनसर्टेन है ये संसार, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, ना हमारा लाइफ पर है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है नेक्स्ट मोमेंट में हमारा लाइफ रहेगा कि हम इस शरीर में रहेंगे कि नहीं। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, क्वाइट अनसर्टेन। बट हम लोग जो है फुल ऑफ, हम लोग सोचते हैं अभी तो है। हाँ, कल कोई वीडियो भेजा था मुझे, हाँ, एक औरत उसमें बोल रही है कि जब तक जिंदगी है एंजॉय करो। हाँ, मायावादी फिलोसफी। एंजॉय करके क्या करेंगे, नेक्स्ट शरीर में कुत्ता का शरीर प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कृष्ण के सेवा में जो भी थोड़ा सा समय दिया है, थोड़ा सा टाइम दिया है, थोड़ा सा भी सेवा किया है, उसका कभी लॉस नहीं होता, वो अक्षय होता है। अक्षय, हम लोग कोई भी हमारे सेवा करते हैं हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो अक्षय नहीं होता है, क्षय हो जाता है वो। हम चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना बड़ा धनी हो, कितना बड़े ज्ञानी हो, कितना बड़े प्रोफेसर हो, लेकिन इस शरीर छोड़ने के बाद सब क्षय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। फिर से ABCD से शुरू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति जो है वो अक्षय होता है। अक्षय मतलब जहां से आप छोड़े हैं वहीं से फिर से शुरू करते हैं। अगर आप ABCD पढ़ के छोड़े हैं तो EFGH से शुरू करेंगे भक्ति। ऐसे इसका महात्म्य है भक्ति का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का। प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं अजामिल। अजामिल के बारे में, एक अजामिल करके एक व्यक्ति था, श्रीमद् भागवतम में ये कथा आता है। अजामिल जो थे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन somehow or other वो अपने जो ब्राह्मण कार्यकलाप से वो विच्युत हो गए थे। बचपन में वो अपने पिता के आदेशानुसार भक्ति में हमेशा लगा रहते थे, भगवान की सेवा में। और धीरे धीरे जब बड़े हुए, उनकी शादी भी हो गई यंग एज में। एक बार वो जंगल में गए थे, कुछ लकड़ी, कुछ पुष्प संग्रह करने के लिए भगवान के सेवा में। लेकिन अचानक उनके साथ एक घटना घटी। उन्होंने देखा कि एक जो वेश्या है, एक शूद्र के साथ बड़े अनसीन पोजीशन में एक दूसरे को आलिंगन करते हुए अपने यौन संबंध में लिप्त रहे। तो ये देखकर अजामिल के मन जो है बड़ा विच्युत हुआ। जिस पथ में वो चल रहे थे उनको तुरंत ही सेंस एंजॉयमेंट का और इंद्रिय कामना का, इंद्रिय तृप्ति का कामना जागृत हुआ उनके मन में। तो अजामिल घर तो आ गए, लेकिन उनका मन जो है हमेशा वहीं पे लगा रहा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने घर परिवार को छोड़कर वहां पे वेश्या के शरण लिए।
देखिए इंद्रिय भोग जो है, एक बार हम लोग इंद्रिय के बस में आ गए तो कोई हमको बचा नहीं सकता। इसलिए हमेशा हम लोगों को इंद्रिय से और इंद्रिय की जो बसता है उससे बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को ये सीख हमेशा दिया जाता है शास्त्रों में कि हमेशा हम लोगों को इंद्रियों को संयम कर रखना चाहिए, और ये केवल पॉसिबल है, संभव है व्हेन वी एंगेज आवर सेंसेस इन कृष्ण सर्विस। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब तक हम हमारे सेंसेस को, इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में नहीं लगाए हैं, तब तक हम हमारे इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं। तब तक हम हमारे इंद्रियों के बस में ही रहेंगे और इंद्रियों हमको संचालित करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इंद्रियों को बस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जो इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण, उनके सेवा में हमारे इंद्रियों को नियोजित करनी चाहिए, तब भी हम लोग इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। इवन अजामिल ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी वो भी विच्युत हो गए अपने पद से। इतना ट्रेंड होकर भी हम लोगों का स्थिति तो बहुत गंभीर है। हम लोग तो कभी भी विच्युत हो सकते हैं, किसी भी क्षण पर, क्योंकि इंद्रिय हमारे बस में नहीं है। और हमारे जो चारों तरफ, हम हर जगह पे जो अजामिल एक बार देखे थे, हम लोग हर बार हर समय देखते रहते। आजकल मीडिया का जमाना है, कभी व्हाट्सएप में आ गया, हाँ, कभी फेसबुक में आ गया, हाँ, फिल्म का थोड़ा सीन जहाँ पे हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, यौन संबंध में लिप्त हैं, बड़े अश्लील ढंग से संसार में अभी कलयुग का स्थिति यही है। हर जगह अश्लीलता दिखाई पड़ता है हम लोगों को। तो कहाँ पे हमारा मन स्थिर होगा? इसलिए हमारा मन हमेशा भागता रहता है, डिस्टर्ब्ड, हमेशा डिस्टर्ब कंडीशन। तो इसीलिए एटलीस्ट एक बार तो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हम लोग ये जो डेंजरस पोजीशन में है इससे बच पाए आगे जाकर। नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा हमको। तो अजामिल भी बच गए थे, क्योंकि वो भगवान की सेवा किए थे अपने बचपन में, इसलिए उनको भी सुरक्षा प्रदान किए थे कृष्ण। जब उन्होंने धीरे धीरे वेश्या के साथ रहने लगे, घर परिवार छोड़कर, अपने पिता माता, अपने पत्नी सबको छोड़कर, तो उन्होंने उस वेश्या से 10 पुत्र जन्म किए थे, पैदा किए थे। और जब उनका उम्र 80 से भी ऊपर था, उनका छोटा बेटा पैदा हुआ था, जिनका नाम उन्होंने रखा था नारायण। ये हम लोग कह सकते हैं ये भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, स्वीकृति की वजह से, क्योंकि उन्होंने सेवा किए थे भगवान का, इसलिए उनके बेटा का नाम रखे नारायण। ये भागवत के ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग इसलिए जो पहले भागवत सुनते थे, लोग अपने बेटों का नाम रखते थे, भगवान का नाम रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि बार बार भगवान का नाम लेने से हम लोगों को हमारा पोजीशन जो है प्योर होता है,
हम लोग धीरे धीरे कंटामिनेशन से मुक्त होते हैं। इसलिए पहले जमाने में बच्चों का नाम रखा जाता था, भगवान के नाम ही रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो डिग्रेडेशन हुआ। हम लोग क्या नाम रखे, पप्पू, गप्पू, ढप्पू, टप्पू। इससे हम लोगों का डिग्रेडेशन होता है। कभी बेटे को हम पप्पू, ढप्पू, गप्पू बुलाएंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का डिग्रेडेशन होगा। पहले मुझे याद है, हमारे दादाजी 3 भाई होते थे और उन तीनों का नाम भगवान का नाम ही रखा गया था, तीनों का नाम। हाँ, और धीरे धीरे वो डिग्रेड हुआ, हमारा नाम हो गया संजय। हाँ, ये एक्चुअली डिग्रेडेशन है। हाँ, तो इसलिए अजामिल जो है सुकृति के वजह से उनका छोटे बेटे का नाम रखे नारायण, और यही उनको लास्ट मोमेंट में काम दिया। और हमेशा वो इतना अटैच थे अपने छोटे बेटे से, हमेशा पूछते थे नारायण खाया, नारायण सोया कि नहीं, नारायण ये किया वो किया, नारायण क्या कर रहा है। ऐसे बोलते बोलते उनको इतना प्राप्ति हुआ स्वीकृति कि वो नारायण नारायण ही बोलते रहे जीवन भर। इतना बड़ा देख, लेकिन वो इतने बड़े पापी थे, अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते थे, रोज डकैती करते थे, लोगों को मारते थे, चोरी करते थे, बहुत पापों में लिप्त थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, खूब पापों में लिप्त थे। लेकिन ये छोटे बच्चा जो उनका था, छोटा बेटा नारायण, उनका नाम लेते लेते उनके अंदर इतना स्वीकृति का प्राप्त हुआ, इतना स्वीकृति प्राप्त हुआ। लास्ट मोमेंट में भी जब शरीर छोड़ रहे थे, जब यमदूत उनके सामने खड़े थे, उस समय भी वो नारायण को तो नहीं पुकार रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे को पुकार रहे थे, नारायण नारायण करके पुकार रहे थे, नारायण कहाँ हो, बचाओ मुझे, अपने बेटे को पुकार रहे थे। लेकिन वहां पे तुरंत विष्णुदूत आविर्भाव हुए। इवन हम कृष्ण को भी ना पुकारे, उनका नाम को खाली पुकारे, देखिए कृष्ण भी खुद आ जाते, नहीं तो कृष्ण के दूत आ जाते। विष्णुदूत आविर्भाव हुए और यमदूत को वहां से जाना पड़ा। यमदूत परास्त होकर चले तो गए, लेकिन उनके मन में बड़ा व्यथा था यमदूतों। वो जाके अपने स्वामी से पूछे, यमराज से पूछे कि इस संसार में हम सोचते थे आप ही बलवान हो, आप ही सुप्रीम हो, लेकिन हमको ऐसे व्यक्तित्व, 4 भुजे वाले व्यक्तित्व आए थे, हम लोगों को परास्त कर दिए। लेकिन यमराज बोले कि अब गलत, आप अभी तक आप लोगों को शायद पता नहीं है कि मेरे से ऊपर कई देवता हैं और उनके ऊपर भी सबसे ऊपर भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है। और उनका नाम कीर्तन जहाँ चल रहा हो, उनका नाम संकीर्तन जहाँ चल रहा हो, उनका ग्लोरिफिकेशन जहाँ पे चल रहा हो, उनकी कथा जहाँ चल रहा हो, हमारा वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है प्रवेश करने का। वहां पे वो यमदूतों को इंस्ट्रक्ट किए कि जहाँ पे हरि कथा चल रहा हो, जहाँ पे हरि संकीर्तन चल रहा हो, वहां पे हमारा कोई अधिकार नहीं है प्रवेश करने का, क्योंकि वो सब पाप मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए अजामिल जो नारायण का नाम लेते रहे, अपने छोटे बेटे का नाम, फाइनल लास्ट मोमेंट में भी नारायण का नाम ले, उसी से ही उनको और एक चांस मिला। उनको विष्णु दूतों ने बोले कि आपको अभी ये दूसरा चांस मिल रहा है, आप अपने जीवन को सुधारिए। तो तुरंत ही अजामिल उठे, अपने जो
डेथ बेड था, जहाँ पे अपना शरीर त्याग करने वाले थे, तुरंत उठे अपने शरीर के साथ, घर छोड़ के सीधा चले गए कहाँ पे? हरिद्वार, जहाँ पे वो अब कंप्लीटली अपने आप को हरि कीर्तन में, हरि भजन में लगा दिए। फिर वो विष्णु लोक की प्राप्ति हुआ उनकी। तो इसलिए हम लोगों को ये संसार में बहुत डेंजरस कंडीशन है, लेकिन हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कथा ही बचा सकती है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भी हम अपना समय देंगे, थोड़ा सा भी चैंटिंग किए होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो रोज करते हैं, सब लोग भाग्यशाली है। सब लोग एटलीस्ट एक बार भगवान के नाम तो ले रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम की पाठ कर रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पे भाग्यशाली है और सबको कृष्ण संरक्षण प्रदान करेंगे, सबको रक्षा करेंगे डिफिकल्ट कंडीशन। तो इसलिए कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ये जो मार्ग है, ये जो पथ है, बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पथ है। इसमें कोई लॉस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें एडवांस करते हैं तो ये हमेशा सुरक्षित रहते हैं इस डेंजरस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग धीरे धीरे अपने आप को एलिवेट कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा साधुओं का, वैष्णवों का और गुरु वैष्णव के शरण लेकर कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोगों को जितना भी हो सके भगवान की सेवा में लगे रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज विशेषकर श्लोक में देखा कि कर्म कैसा होना चाहिए हमारा। कर्म मोह माया बस होना चाहिए या कृष्ण भगवान भावना मित्र अमृत होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसमें एक चीज देखा कि अगर कृष्ण भावना मृत से के द्वारा कर्म किया जा रहा है तो वह काम अगर अधूरा भी रहता है नहीं तो वो भी काम पूर्ण माना जाता है। अगर कृष्ण भावना मृत, जैसे कि किसी की डेथ अकाल मृत्यु हो जाए और वो कृष्ण भावना मृत से वो जितना भी काम किया गया तो वो काम पूर्ण ही है। लेकिन अगर हम पूरी जिंदगी भी कर्म करें और वो कृष्ण भावना से अधूरी रहे तो काम अधूरा है। तो कृष्ण भावना मृत होकर किया गया काम वो पूर्णतः काम है। हमें इसके लिए हमें इसके लिए सबसे पहले भगवान श्रीपाद बताते हैं कि हमें इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। हर काम ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, मैक्सिमम जो आज के सांसारिक युग में है काम ग्रेटिफिकेशन कहता है, चाहे सेक्सुअल हो चाहे ईटिंग ग्रेटिफिकेशन हो। मांस मछली खाना ईटिंग ग्रेटिफिकेशन, और इंद्रियों को मतलब हमारा इंद्रिय हमारे बस में नहीं, ग्रेटिफिकेशन की ओर भाग रहा है। तो उस ग्रेटिफिकेशन और कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें अच्छे से हमें डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ कि हमें कृष्ण भक्ति में होकर हर काम करना चाहिए। ग्रेटिफिकेशन वो क्षण भर है, टेम्प्रोरी है, जो कि ग्रेटिफिकेशन टेम्प्रोरी है। तो कृष्ण भक्ति में किया हुआ काम जो होता है वो परमानेंट होता है। एक विशेष एग्जाम्पल अजामिल के थ्रू आप जाने कि वो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मतलब वो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में लीन हो गए थे। तो इस तरह से मतलब ये इंद्रिय को कंट्रोल करना, इंद्रिय कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो उसका एकमात्र साधन जो है वो ईश्वर भक्ति, कृष्ण भक्ति ही है। तो इंद्रिय को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ईश्वर भक्ति और चैंटिंग के थ्रू आसानी से मतलब किया जा सकता है। आसान तो नहीं है, लेकिन भगवान के अगर के बस में रहा जाए तो बहुत हद तक
मतलब हर चीज भगवान के सामने, भगवान के भक्ति में हर चीज आसान हो जाता है। तो इंद्रिय को कंट्रोल करना बहुत ही जो ये तो मुझे जाना कि इंडिया कंट्रोल कैसे किया जाता है, इतना ही ये श्लोक के माध्यम से समझे। जी, जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा सौरभ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही सौरभ जी। आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। इस चीज को मान के चल रहा है कि हाँ, जब तक इंद्री को वश में ना किया जाए तब तक काफी सारी चीजें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये जैसे प्रभुपाद भी प्रभु भी बोलते हैं कि इदना नाम साथी भूता नाम चाकेशु या भूतेषु तम नमो नमः। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, इस चीज का है, एक प्रभाव है जो हम प्रभु की सेवा से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें आज तक मिलता आ रहा है। ये बिल्कुल भौतिक सुख है, लेकिन इसके लिए इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, जो इंद्रिय को अपने अधीन करने के बाद ही और भी हमें संपन्नता सुख सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ हम हमारे जो भी आजकल के जीवन यापन के साथ साथ करते हुए जो भी काम है वो भी करते रहना है, लेकिन उसमें संलिप्त नहीं होना है। यही हमारा आज का जो शिक्षा है, यही मिल रहा है यहाँ से। हरे कृष्ण संजय से। हरे कृष्णा, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कुंदन। हरे कृष्णा सर, थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया और जामिल का स्टोरी से उन्होंने सर ने काफ़ी अच्छे से कंक्लूड किया है। और आज हम लोगों ने देखा है, कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो बुद्धि योग है, जो कॉन्शियसनेस से हम लोग जो है, अगर हम लोग लिटिल एडवांसमेंट अगर हम लोग अपने जो डिवोशन पाथ है अगर उसमें हम लोग वो जाते हैं तो अपना जो कॉन्शियसनेस अगर हम लोग आत्मा से परमात्मा जो जैसे कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से जो हम लोग का जो आत्मा है, जो भगवान के जो परमात्मा है, उससे अगर हम लोग उनके जो पार्ट एंड पार्सल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग जो है अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर एडवांसमेंट डिवोशनल सर्विस में होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हम लोग जो है प्रोटेक्ट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस टाइप ऑफ फियर है उससे भी हम लोग प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, सर भी ऑलरेडी बताते हैं, प्रहलाद महाराज जो कि उनका जितना भी प्रॉब्लम था वो भगवान को वो डिवोट कर दिए थे, क्योंकि जो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर मटेरियल वर्ल्ड में वो है मृत्यु। और वो उनके हर पग पग पे जो है, जो उनके फादर हैं वो कैसे जो है वो हर टाइम पे उनको सजा ही देते रहे, जिसमें जिस तरह से वो बोलते थे कि हमारा पूजा करो, और नहीं करने पे उनको जो है कभी हाथी के नीचे वो डाल देते थे, कभी कुछ कर देते थे। तो हर पग पग पे उनका मृत्यु जो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर है, तो वहां से भगवान उनको नरसिंह अवतार लेके वहां से उनको बचाते हैं। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जो है वो अपने परपट में बताते हैं कि अगर हम लोग जो है जो सबसे जो हम लोग का जो अगर कृष्णा कॉन्शियस में अगर हम लोग का एक्टिविटी रहता है तो जो हाईएस्ट जो ट्रांसडेंटल जो क्वालिटी ऑफ वर्क है हम लोग वो जो है अचीव करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग कोई भी 1% भी अगर हम लोग अगर भगवान के प्रति हम लोग रहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो 1% भी हम लोग का जो वर्क है वो सिर्फ इसी मटेरियल लाइफ में ही सिर्फ नहीं रहता है। वो वर्क 1% जो है वो आफ्टर डेथ भी हम लोग जब न्यू बर्थ लेते हैं तो स्टार्ट होता है। जैसे सर ने बताया कि जैसे ABCD हम लोग जिस तरह से अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में सीखते हैं, अगर भक्ति में अगर हम लोग ABCD करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में हम लोग E से स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर यहाँ पे हम लोग एक
3% हम लोग अचीव करते हैं डिवोशनल सर्विस, तो नेक्स्ट वर्ष में हम लोग जो है 2% से स्टार्ट करना होता है। और ये चीज़ आज हम लोग ने देखा कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो है वो 100% से काउंट किया जाता है, तभी हम लोग मटेरियली प्रॉफिट मानते हैं। जैसे सक्सेस तभी जब तक नहीं मिलता है वो प्योर 100% होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि अजामिल का स्टोरी से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो जो लिप्त हो जाता है मटेरियल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है उसमें वो लिप्त होने के कारण वो भूल जाता है, लेकिन अपने सन का नाम नारायण रखने के कारण वो कैसे जो है वो रिवाइव कर पाता है, वो जो पहले जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में था, और भगवान उनको कैसे वो जो यमराज के दूत हैं उससे वो उनको बचाते हैं अपने दूत भेजकर, कि लास्ट का जो नाम जो है वो नारायण नारायण जो है वो करते हैं जब अपने पुत्र को ही बुलाते हैं, बट भगवान उनको उससे वो करते हैं जो है यमदूत से उनसे वो फाइट करके उनके दूत भगवान के दूत जो हैं। तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोग का जो मटेरियल एक्टिविटीज है, मतलब इस बॉडी एट लास्ट जो है इस बॉडी के बाद वो रिजल्ट जो मिलता है वो एंड होता है। और अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में हम लोग रहते हैं तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो अगर हम लोग को बॉडी अगर लॉस भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नेक्स्ट बर्थ में हम लोग वहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोग को सर ने जैसा बताया कि गुरुजन है और वैष्णव लोग उनका अगर हम लोग सेवा करें तभी हम लोग जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और डिवोशनल सर्विस में हम लोग को ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, ताकि हम लोग को जो अकाल अगर मृत्यु भी हो तो हम लोग जो है वो वहाँ से फिर स्टार्ट करें नेक्स्ट बर्थ में। तो ये चीज़ देखें सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंदन। हरे कृष्णा धनंजय। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, सतीश प्रभु, कुंदन प्रभु। तो आज का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड सर डिस्कस्ड very well and we can learn many things from this part today, that how bhakti is important in our life. Prabhupada also mentioned very well that a little endeavor there is no loss or diminution. तो भक्ति का कभी व्यर्थ नहीं होता है। और उससे जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने यहीं पे दिए कि ओ अजामिल का स्टोरी। सो सर also given the story and we can learn that the Ajamil, the beginning he was a devotee, but somehow or other he engaged in material sense engagement, and he deviated from the devotees or devotee associations. But due to the भगवान का जो कृपा है, due to the भगवान उनको although he deviated from the path of the Krishna Bhavanamrit, but at the end his the younger son named called Narayan. So he remembered more and more, and we can see he finally Vishnudut came and rescue him. सो उससे ये स्टोरी और ये सीख मिलता है कि जो भक्ति का कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। although beginning he was a devotee, but although he engaged in with some prostitute association, but at the end he unconsciously उनका बेटा का नाम लेते हुए वो विष्णुदूत आके उनको उद्धार किए हैं। तो इसलिए यही हम लोग को जानना चाहिए कि डिवोटी वो जो उनको उद्धार मिला बिकॉज ही वाज अ डिवोटी एंड अनकॉन्शियसली ही आल्सो remember the God. So the learning point is that if we doing if we remembering Krishna, if we remembering doing Krishna service, it consciously or unconsciously, if it our desirely or without desirely, always be benefited. तो और जो सर ने डिस्कस किया कि ऑलवेज वी डू कर्म, हम लोग कर्म करते
गीता में भी ये कहते हैं कि कर्म करते जाओ बट फल का उपेक्षा मत करो. But what type of karma we should do? The karma we should do for Krishna. कृष्णा के लिए कर्म करना चाहिए. तो the main sar of this गीता is that one of the sar जो 9th चैप्टर में भगवान कृष्ण बता रहा है कि मन मना भवो मद भक्तो मद जाजिमम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तो बमात्मानं मत परायण. सो तुम मत मना भवो मत भक्तो मद जाजिमम नमस्कुरु. तुम मुझे शरण करो, मेरा भक्त मानो, मुझे पूजा करो एंड एट द एंड मेरे पास आ जाओ. तो इसलिए हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग को कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, और इसी वजह से हम लोग more and more service to Krishna, we can understand the Krishna's lotus feet. We can little bit, if we understand the Krishna, so at the end Krishna always protect us. तो कृष्णा कहते हैं कि ये जीवन रहते हुए हम लोग जब कृष्णा को शरण ले, at the end or the old age, if we do not remember to Krishna, कृष्णा हम लोग को शरण दे के उनके पास लेके जाएंगे. तो आज यही सीख मिला कि हाउ डू भक्ति इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड वी आर very much obliged to share that sir conducted every day. Sir, we get the association of sir, and we are very fortunate. We are attaching with we are reading daily Bhagavad Gita, and this is called the bhakti. Hare Krishna sir. Hare Krishna. Thank you, Dhananjay. Beautiful. Hare Krishna, Abhinav. हरे कृष्ण सर। तो हमने जैसे कल हम लोग कर्म योग के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको जो है भगवान को ऑफर करके करना चाहिए, और जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमारे शास्त्रीय ड्यूटीज हैं, उसमें भगवान को उसका पार्ट बनाना चाहिए. हमने हमारे जो भी कर्म होते हैं उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक गेन के लिए हमें कर्म करना चाहिए. क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट होते हैं, जैसा कि हम लोग कल भी पढ़ रहे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने देखा था कि उससे जो भी सुख प्राप्त होते हैं वो बहुत ही क्षणिक होते हैं, और हमें इसलिए उनके पीछे नहीं भागना चाहिए. और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि जब तक हम हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक हम ये मोमेंट्री प्लेजर और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके पीछे भागते रहेंगे. और ये जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आते हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस माया से बच पाए. क्योंकि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तब हमारे सारे सेंसेस जो है वो खुद धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, और हम कभी अपने पद से भ्रष्ट भी हो जाते हैं. तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, जैसा कि आज हमने जामिल की स्टोरी से देखा कि क्योंकि वो पहले भक्त रहे थे, तो जब वो अपने पद से भ्रष्ट भी हो गए थे तो भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा था. और जैसा कि हम आज के परपट में पढ़ रहे थे और पहले भागवतम में भी हमने पढ़ा था कि जो भक्ति मार्ग में रह के जो हम पुण्य कमाते हैं वो अक्षय होता है. वो मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से भी बंधा नहीं होता है. जो भी हम कर्म अपने इस जन्म में करते हैं भक्ति मार्ग में, तो अगले जन्म में भी वो उसका जो फल होता है वो रहता है. मतलब अगर हम लोग 10% भी काम किए हैं तो अगले जन्म में वो वहीं से शुरू होता है और वो कभी क्षय नहीं होता है. तो यही हमने आज के परपट से सीखा सर. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Abhinav. Beautiful. Hare Krishna. Piyush. हरे कृष्णा सर. सर हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी ये देखा था कि भगवान कह रहे थे अर्जुन को कि जो है कर्म करते रहो परंतु फल की चिंता जो है वो मत करो. मगर कर्म जो है वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो जो है हम लोग को सीखने को मिला कि हम कोई भी कर्म करें वो कृष्ण
कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करें। और आज जो है सर ने बताया कि इस तरह के जो कर्म होते हैं वही जो है वो भक्ति कहलाती है। और यहाँ पे भी जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को बता रहे हैं कि जो भी भगवान का जो है वो थोड़ा-सा भी सेवा करता है, भगवान के कृष्ण कॉन्शियस में रह के जो है कर्म करता है, तो वो जो कर्म है वो जो है वो कभी भी जो है वो क्षय नहीं होता है। मगर वो उसके विपरीत अगर हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है अगर कोई भी जो है कर्म करते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, तो उसका जो है अंत होना जो है वो निश्चित है। और जैसा कि यहाँ पे जो है प्रभुपाद भी जो है बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रह के अगर हम लोग 1% का भी जो है वो अगर जो है हम लोग कर्म करें, तो उसका जो रिज़ल्ट रहता है वो जो है वो परमानेंट रहेगा। और जो उसका जो नेक्स्ट बिगिनिंग होगा वो 2% से जो है वो स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो 1% जो है वो जो है वो हट जाएगा। और हम लोग जो है हम लोगों ने ये जो है सीखा भी है कि हम लोग का जो युद्ध है वो अपने जो है अपने ही इंद्रियों से ही है। और जब तक जो है हम लोग अपने इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में नहीं लगाएँगे, तब तक जो है हम लोग अपने इंद्रियों के जो है वश में ही रहेंगे। इसलिए जो है हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपनी इंद्रियों को जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकें, ताकि जो है उनकी जो है थोड़ी बहुत भी सेवा जो है अगर हम लोग कर सकें, तो भी जो है हम लोग को भगवान का जो है वो कृपा जो है हम लोग को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को अजामिल का जैसा स्टोरीज़ के माध्यम से जो है हम लोग को ये यही बात जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि और हम लोगों ने पूरा जो है स्टोरी भी देखा अजामिल का। तो किस तरह से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो है थोड़ा बहुत भी जो है भगवान की जो सेवा की थी, और अंत में जो है मृत्युशैया पे जो है अपने पुत्र के ही बहाने जो है जो भगवान का जो है उन्होंने नाम लिया। तो भगवान ने जो है उनको जो है नेक्स्ट चांस दिया अपना जीवन को जो है सुधारने का। उनको जो है भगवान के जो है मर्सी प्राप्त हुआ। और अंत में जो है प्रभुपाद जो है कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर जो है हम लोग पूरी तरह से जो है अगर सक्सेसफुल ना भी हो पाए, और जो है अगर हमारा जो है ये शरीर का अगर नाश हो जाएगा, तो भी जो है हम लोग को नेक्स्ट लाइफ के अंदर अगले जन्म के अंदर जो है हम लोग को चांस मिलेगा कि हम लोग जो है फर्दर एलिवेट कर सके, अपने आप को जो है वो लिबरेट कर सके। तो आज सर यही सीखने को मिला हम लोग को कि जो है हम लोग को जो है थोड़ा-सा ही अगर हो सके तो भगवान का जो है अपने भगवान की जो है वो सेवा के में जो है लगाना चाहिए। और सबसे जो आसान, जैसे सर ने भी बताया था कि कृष्ण भावनामृत किस तरह से बने, तो उसके लिए भी जो है सर ने पिछले से पिछली क्लास के अंदर जो है वो 3 मेथड जो है वो बताए थे। 3 पॉइंट्स के अंदर जो है करके बताया था। और कम से कम जो है भगवान का जो है हम लोग को निरंतर जो है वो नाम लेते रहना चाहिए, ताकि जो है हमारा मन जो है वो धीरे-धीरे शुद्ध हो सके। आज के पर्पज़ से यही सब ठीक है सर। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Piyush. Beautiful. Hare Krishna. So I hope everybody is fine. Hare Krishna.